of God with all of you so that you can be strengthened in your faith. और आप सबके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूं ताकि आप अपने ईमान में मजबूत हों। As you heard, I am Pastor Norris Henry, and I am in the United States of America. जैसा कि आपने सुना कि मेरा नाम नॉरिस हेनरी है और मैं अमेरिका से हूँ। And I am in the state of Maryland. और मैं मैरीलैंड स्टेट में हूँ इस वक्त। And the city I lived in is called Bowie. Bowie? Bowie, B-O-W-I-E, Bowie. बोई और मैं जिस स्टेट में हूँ उसका नाम बोई है, जिस जगह पे मैं हूँ। So it's a joy to be a part of this Urdu Christian Fellowship Bible Study. So आज हम इस फेलोशिप में जो उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप है इसमें शामिल हैं स्टडी के लिए। Because we are all one family. क्योंकि हम सब एक खानदान हैं। We are part of the family of God. हम खुदा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। Regardless of our geographic location. Sorry? Regardless of our geographic locations. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, खुदा हमारे साथ है। Because if we are in the Lord Jesus Christ, क्योंकि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं, we are one nation under God. हम खुदा की एक कौम हैं। And that nation is a holy nation. और वो कौम बड़ी पाक कौम है। And as God's children, और खुदा के बच्चे होते हुए, we must learn to reflect the nature, the character, and the glory of his only begotten Son, Jesus Christ. और खुदा के बच्चे होते हुए हमें उसी ग्लोरी को मुनक्किस करना चाहिए अपनी जिंदगियों से जो उसके बेटे यीशु मसीह में थी। And we can only do so patiently. और हम सिर्फ सब्र के साथ ही ये काम कर सकते हैं। So today I'm going to talk about patience. तो आज मैं सब्र के बारे में ही आपसे बात करने जा रहा हूँ। Because it is very important that all of us patiently reflect Christ. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम सब सब्र के साथ यीशु मसीह को मुनक्किस करें अपनी जिंदगियों से। And the way we are going to do the study, we are going to have the text being read in Urdu language, then I will read it in English. और हम उर्दू में पहले पढ़ेंगे और फिर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। And it is one verse, Revelation chapter 3 and verse 10. और ये एक ही आयत है मुकाशवा की किताब बाब 3 और उसकी 10वीं आयत। So go ahead and read it, translator. Yes. चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। आमीन। Amen. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Amen. The King James Version puts it this way: because you have kept the word of my patience. Go ahead, translate. We are on the translation now. Yes, we are going to. Yes. The King James Version puts it this way: because you have kept the word of my patience. और किंग जेम्स वर्जन जो है उर्दू बाइबल का, वो इसको यूं बयान करता है कि क्योंकि तुमने सब्र किया है, इसलिए
Patience is a virtue that is developed in every true believer in Christ. और सब्र एक ऐसी खूबी है जो हम में से हर एक में वक्त के साथ बढ़ती है खुदावंद यीशु मसीह में, whose faith are always being tested over and over again in this life. और इस जिंदगी में उसका ये सब्र बार बार आजमाया जाता है, Because without a test, there will never be a testimony. क्योंकि कभी भी कोई भी आजमाइश ऐसी नहीं जिसके साथ गवाही ना हो. Such tests of our faith in God can either build us up in the most holy faith, और ऐसी गवाही हमारी जिंदगियों में आती है, होती है, जिसके साथ हमारा ईमान बहुत ज्यादा बढ़ता है. if we truly trust in the Lord with all of our hearts. अगर हम पूरे दिल से खुदावंद पर भरोसा करें, Or it will break us down if we half-heartedly seek the Lord only out of convenience. और अगर हम सिर्फ अपनी सहूलत के लिए ही खुदा के कलाम को लेते हैं तो फिर, especially whenever we have a problem or need. स्पेशली जब हमें जरूरत होती है या हम किसी मुश्किल में घिरे होते हैं. Patience is a process of molding, or I would say testing, is a process of molding and even pruning every true child of God. हर ईमानदार को जो सब्र है वो उसको छांटता तराशता है और उसकी काट छांट करता है, उसको मजबूत बनाता है ईमान में, into the character of our Lord and Savior Jesus Christ. और हम यीशु मसीह नासरी के जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नमूने पर बनते जाते हैं उस सब्र के वसीले से. Because whom the Lord foreknew, he predestined to be conformed to the image of his son. क्योंकि खुदा ये चाहता है जरूर ही कि हम उसके बेटे यीशु के नक्श पर बन जाएं, उस जैसे बन जाएं. It is the very reason Jesus said, if any man will come after me, let him first deny himself. यही वजह है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे. Take up his cross daily and follow me. हर रोज अपनी सलीब उठाएं और मुझे फॉलो करें, मेरे पीछे चलें. Because it is all about Christ and not about us. क्योंकि ये सारा जलाल खुदावंद यीशु के लिए है, ना कि हमारे लिए. For all who truly do that will allow patience to have its perfect course in their lives. क्योंकि अगर ये सब करेंगे, सब्र करेंगे, तो फिर ही हम जो ट्रस्ट है वो हमारी जिंदगी में बढ़ता 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 चला जाएगा, तभी वो अपना रास्ता बनाएगा सब्र की वजह से. So another word that is used for patience is perseverance. और सब्र के लिए जो है वो मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है, इसलिए ये लफ्ज सब्र यूज किया गया है क्योंकि इसके बीच में मुस्तकिल मिजाज रहना बहुत जरूरी है. So regardless of what we go through in this life as believers in Christ, इससे हमें, जब हम यीशु मसीह में जिंदगी बसर करते हैं तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम पर क्या बीतता है. we must patiently reflect Christ in every situation. हर हालत में हमें यीशु मसीह को ही मुनक्किस करना चाहिए अपनी जिंदगियों से. And that comes from spending quality and quantity time with the Lord in our daily devotion.
और हमें अपनी हर रोज की इबादत में बहुत ज्यादा वक्त, क्वालिटी टाइम खुदा के साथ गुजारने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वक्त सब्र के साथ खुदा के साथ गुजारें, तब ही ये खूबी हमारे अंदर बढ़ेगी। Because we will learn his example of being patient with us. क्योंकि तब ही हम सीख सकेंगे कि कैसे सब्र के साथ हमने उसके साथ चलना है। For the scripture says that the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness. और जैसा कि कलाम में लिखा है, हमें उसके वादों पर शक नहीं करना है, but is long suffering toward all of us, not willing any of us should perish, but all of us should come to repentance. हाँ, क्योंकि खुदावन यही चाहता है कि किसी भी शख्स की हलाकत ना हो, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। So we must willingly endure every situation, knowing that the Lord is with us in that situation. और हमें किसी भी हालत में, परेशानी की, दुख की, तकलीफ की, खुशी की, हर हालत में इस बात को याद रखना है कि खुदा हमारे साथ है। And the test will prove whether or not we are fully committed to Jesus. और जब हम इम्तिहान में या आजमाइश में पढ़ते हैं, तो वो टेस्ट हमें ये साबित करता है कि हम खुदा के साथ हैं या नहीं। That is why Paul wrote in 2 Timothy chapter 2 verse 11 through 13. इसी वजह से पौलुस रसूल तिमोथियस के नाम दूसरे खत में कहता है, उसके दूसरे बाब की 11वीं से 13वीं आयत में, This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. वो इसीलिए कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि मैं यीशु के साथ जा रहूंगा। If we endure, we shall also reign with him. और हम उसके साथ बादशाही करेंगे, खुदावंद यीशु के साथ। However, if we deny him, he also will deny us. ताहम अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. अगर हम उसको भूल भी जाएं तो भी वो हमें नहीं भूलता, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता, जो उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। It is normally said that pressure is a privilege. हमेशा यही कहा जाता है कि फायदा उठाया जाता है किसी जोर जबरदस्ती का। I will say that is more true for the believers in Christ. और मैं कहूंगा कि मसीहियों के लिए, ईमानदारों के लिए तो ये और भी सही है, दुरुस्त है ये बात। Because it does not matter how great is the pressure. क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ईमानदारों पर कितना ज्यादा प्रेशर है, दबाव है। What does matter is where the pressure lies. जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये कि वो दबाव कहाँ पड़ रहा है। We must make sure that the pressure is not between us and God. सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि जो प्रेशर है वो हमारे और खुदा के दरमियान ना हो। Then it will separate us from the Lord. क्योंकि ये प्रेशर हमें खुदा से जुदा ना कर दे। But if it is behind us, then it will only press us closer to God. लेकिन अगर यही दबाव हमारे पीछे होगा तो ये हमें दबा दबा कर खुदा के मजीद नजदीक ले जाएगा। It will cause us to intensify our fellowship and communion with God. और ये हमारी रिफाकत और शराकत खुदा के साथ और ज्यादा बढ़ा देगा।
For this reason, every true believer must meditate on the word of God every day and every night. और इसी वजह से हर ईमानदार को हर रोज हर रात खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करना चाहिए, so as to fortify their faith and be able to pass the test of times. और उनको अपने ईमान को की मजबूती मांगते रहनी चाहिए ताकि वो हर इम्तिहान में हर आजमाइश पर काबू पा सकें। Because in God's word, we receive three things that motivate us to exercise patience. और सब्र को हासिल करने के लिए तीन चीजें हैं जो हर रोज हमें करनी चाहिए, एक ईमानदार को हर रोज करनी चाहिए। Number one, पहली we receive divine consolation. हमें खुदा से इलाही जो है हिकमत मांगनी चाहिए, because God's word comes to stimulate our faith, comfort us, and encourage us in Him. क्योंकि जो खुदा की हिकमत है वो हमारे ऊपर जाहिर होती है, वो हमें मजबूत करती है, हमें आराम देती है, हमें खुशी बख्शती है और हौसला देती है। That's why Paul told the saints at Colossae in Colossians chapter 2, पौलुस रसूल ने कुलूसियों के खत में दूसरे बाब में कहा, as you receive Christ Jesus the Lord, you must also walk in Him. जब तुम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हो तो जरूर उसके साथ चलो, rooted and built up in Him, उसमें तामीर होते चले जाओ, as you have been taught, abound in it with thanksgiving. जब तुम शुक्रगुजारी के साथ उसमें मजबूत रहते हो, बने रहते हो। More so, he told them in chapter 3 to let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. तो वो कहता है तीसरे बाब में कि जब तुम खुदा के साथ रिफाकत रखते हो तो तुम हिकमत में मजीद बढ़ते चले जाते हो। For in God's word we will be able to see everything in God's perspective. क्योंकि हम खुदा के कलाम में खुदा की हिकमत को समझ सकते हैं उसके कलाम को पढ़ने से, and will encourage us to endure hardness as good soldiers of the Lord. और फिर हम खुदा के अच्छे सिपाही बन सकते हैं and see things the way God sees them pertaining to those who are rich and poor, those who are wicked and those who are righteous. और फिर हम खुदा के उस इरफान तक पहुंच जाते हैं और हमें लोगों की पहचान हो जाती है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है और कौन साबित कदम है, खुदा के साथ चलने वाला है और कौन मकार लोग हैं, कौन खुदा से दूर लोग हैं। God's word assures us that our rich oppressors will be judged. खुदा का कलाम हमें ये तसल्ली देता है और यकीन दहानी कराता है कि as it is written in James chapter 5 verse 1 through 8, याकूब के खत में पहली से 8वीं आयत chapter 5 verse 1 through 8, याकूब का 5वां बाब और उसकी पहली से 8वीं आयत तक। come now you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. And अमीरों आओ और देखो उस बला को जो तुम पर आने वाली है और रो और मातम करो। Your riches are corrupted and your garments are moth eaten. तुम्हारी जो अमीर है वो किसी काम की नहीं, तुम्हारे कपड़े जो हैं वो दागदार हो चुके हैं। Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you. और तुम्हारे जो सोना और चांदी हैं वो सब खराब हो चुके हैं और यही खराबी उसकी तुम्हारी गवाह है।
and will eat your flesh like fire. और ये तो तुम्हें खा जाएगी जैसे आग खा जाती है। You have heaped up treasure in the last days. तुमने आखिरी दिनों के लिए ये माल जमा किया था। Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, लेकिन ये रकम, ये दौलत जो तुमने गलत तरीके से हासिल की है, जमा की है, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth. इस पर रो और वावेला करो, क्योंकि तुम्हारा ये रोना और वावेला करना खुदा के कानों तक पहुंचा है। You have lived on the earth in pleasure and luxury. तुम इस दुनिया में जो रहे हो तो बड़ी खुशहाली के साथ और लग्जरी लाइफ गुजारी, तमाम सहूलतों के साथ जिंदगी गुजारी है। You have fattened your hearts as in a day of slaughter. तुमने अपने दिलों को ज़िबा के दिन के लिए मोटा ताजा किया है। You have condemned, you have murdered the just. तुमने लोगों को कसूरवार ठहराया है, तुमने कत्ल किया है, वो तो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। He does not resist you. वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। Therefore, this is now to the believers in Christ. इसी वजह से ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के लिए हैं। Be patient, brethren, until the coming of the Lord. खुदावंद यीशु मसीह के आने तक सब्र किए रहो। See how the farmer waits for the precious fruit of the earth. देखो कि किसान किस तरह सब्र करता है उस दिन के लिए कि जब उसकी फसल पक कर तैयार हो जाएगी। Waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. वो इस बात के लिए बड़े सब्र से इंतजार करता है जब वो भर भर कर जमा करेगा। You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. तुम भी सब्र करो और खुदावंद यीशु मसीह के आने का इंतजार करते रहो। James further admonishes the believers in Christ. याकूब के खत के चौथे बाब में वो उन लोगों का जिक्र करता है जो क्राइस्ट यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, to even have patience with each other. वो एक दूसरे के साथ भी सब्र रखते थे। By saying, do not grumble against one another, brethren. वो कहता है कि ऐ भाइयों, एक दूसरे के साथ बुड़बुड़ाओ नहीं, lest you be condemned. ताकि तुम्हारी सुनवाई हो, तुम्हें झिड़क ना दिया जाए। Behold, the judge is standing at the door. याद रखो कि जो जज है वो दरवाजे पर खड़ा है। My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord. ऐ भाइयों, तुम जो है वो खुदा का इंतजार करो, एक ही है क्योंकि जो बचाने वाला है। As an example of suffering and patience. वो आपकी तकलीफों और आपके सब्र के बारे में बात करता है। Indeed, we count them blessed who endure. हाँ, हम वाकई उसको बड़ा बाबरकत समझते हैं। You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord. Or you have heard of the patience of Job. और तुम अय्यूब के सब्र के बारे में सुन चुके हो that the Lord is very compassionate and merciful. कि खुदा उस पर बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला बना। And you can read all about that in James chapter 5 verse 9 through 11. और हम ये याकूब के खत के 5वें बाब की 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ते हैं।
I want you to know that when you exercise patience, you will sanctify the Lord in your heart. मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सब्र करते हैं तो आप खुदा को अपने दिल में कबूल करते हैं. You will be more swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. आप सुनने में जो है वो तेज और बोलने में धीरे बन जाएं. No wonder Paul told the leaders of Thessalonica, जो पौलुस रसूल है वो थस्सलुनीके की जो लीडर्स थे उनके साथ मुखातिब होता है और कहता है in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 14, थस्सलुनीके का पहला बाब और उसकी 14वीं आयत. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly. Thessalonians chapter 5 verse 14, 1-4. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ. आमीन. Amen. Now we exhort you, brethren, for those who are here that only speak English. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. और इसी वजह से ऐ भाइयों, मैं आप सबको भी ये कहता हूं कि आप सब एक दूसरे को जो बेकायदा चलते हैं उन्हें समझाओ, और जो कम हिम्मत है उन सब को हौसला दो, तसल्ली दो, और कभी भी एक दूसरे के साथ बुराई ना करो. Secondly, God's word also encourages and ignites our daily devotion. इसी वजह से खुदा हमारी हर रोज की जो इबादत है, जो हम हर रोज करते हैं, उसमें वो खुद मौजूद होता और हमें मुनव्वर करता अपने कलाम से. Because trials profits all true believers in Christ. क्योंकि जो आजमाइशें हैं वो सब ईमानदारों पर आ जाती हैं. For it causes prayer to be intensified in all those who wholeheartedly trust in the Lord. Speak small sentences. Sorry. For it causes prayers क्योंकि जो दुआएं हैं to be intensified, क्योंकि ताकि जो हमारी दुआएं हैं वो रुक ना जाएं, in all those who wholeheartedly, वो सब जो पूरे दिल से दुआ करते हैं, trust in the Lord. और खुदा पर भरोसा रखते हैं. They will not mourn and groan in the midst of trial. वो कभी भी अपनी आजमाइशों में रोएंगे नहीं और चिल्लाएंगे नहीं. But they will pray and give praise to the Lord. और वो दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम की सिताइश करेंगे. They will have no time for a pity party. हाँ, उनके पास कोई टाइम नहीं होगा कि वो एक जो है वो रहम तरस वाली शक्ल बनाकर फिरें. But always rejoicing in the Lord. बल्कि वो हमेशा खुशो खुरम रहेंगे, खुशी मनाएंगे खुदावंद यीशु मसीह में. As Paul admonished in Romans chapter 12 and verse 12. जैसे कि पौलुस रसूल रोमियो के खत के 12वें बाब की 12वीं आयत में कहता है, rejoicing in hope. खुदावंद में खुश रहो. Patient in tribulation. एक मिनट. उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो. Yes, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. हाँ, उम्मीद में खुश रहो, मुसीबत में सब्र करो, और दुआ करने में हर वक्त मशगूल रहो. आमीन. Amen. We ought
to be committing everything into the hands of the Lord. हमें हर वक्त, हर बात, हर काम यीशु के हाथों में दे देना चाहिए. I put it this way. मैं इसी तरह से करता हूं. Bother God about everything. खुदा जो है वो हर बात की फिक्र करता है, so that nothing will bother you. इसलिए कोई चीज आपको तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी. As Paul puts it in Philippians chapter 4, जब पौलुस रसूल फिलिपियों के खत के 4 बाब में कहता है, be anxious for nothing, किसी बात की फिक्र ना करो, but in everything with prayer and supplication, बल्कि हर काम में दुआ और मुनाजात करते रहो, with thanksgiving, शुक्रगुजारी के साथ. let your request be made known unto God. तुम्हारी दरख्वास्त और दुआ मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हजूर पेश की जाए. And the peace of God that passes all understanding तो खुदा का इत्मीनान जो तमाम समझ से बिल्कुल बाहर है, will keep your hearts and mind through Jesus Christ. our तुम्हारे Lord. दिलों और ख्यालों को खुदावंद में मजबूत करेगा. Before he said that to them earlier in that chapter, इस बात के कहने से पहले इस बाब के शुरू में he said, rejoice in the Lord always. वो कहता है कि हमेशा खुदावंद में खुश रहो, खुश रहो. And again, I say, rejoice. मैं फिर कहता हूँ, खुश रहो. Let your gentleness be known to all men. तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर की जाए, Because the Lord is at hand. क्योंकि खुदावंद करीब है. There will be great joy in the midst of tribulation. बहुत ज्यादा खुशी होगी उस मुसीबत के ऐन दरमियान में, if we are in constant devotion अगर to the हम Lord. मुसलसल दुआ करते रहेंगे खुदा से. And we will count every trial as a marvelous privilege और हम फिर बड़ी फतहमंदी पाएंगे उस आजमाइश पर जो हमारे ऊपर आई है, to experience the presence and power of God in our lives. और खुदावंद की हजूरी और उसकी मामूरी जो हमारी जिंदगी में है उसका तजर्बा करेंगे. Just as James admonished, जैसे कि याकूब ने बताया, कहा, in James chapter 1 verse 2 through याकूब के 8, खत, याकूब के खत chapter 1 verse 2 through verse 8, पहले बाब की 2 से 8वीं आयत तक. my brethren, count it all joy when you fall into various trials. ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ते हो तो कमाल खुशी की बात जानना, Knowing that the testing of your faith produces patience. ये जानकर कि तुम्हारे सब्र की जो तुम्हारे ईमान की जो आजमाइश है वो सब्र पैदा करती है. But let patience have its perfect work, लेकिन सब्र को अपना पूरा काम करने दो, that you may be perfect and complete, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, lacking nothing. और तुम में किसी बात की कमी ना रहे. आमीन, आमीन. Amen. However, if any of you lacks wisdom, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो, let him ask of God, तो वो who खुदा से gives मांगे जो देता है
who gives to all liberally or freely, जो बगैर मलामत किए सबको खुशी से अता करता है, and without reproach. और बगैर मलामत किए फयाजी के साथ देता है, And it will be given to him. जब वो मांगेगा तो उसको दी जाएगी, But let him ask in faith, लेकिन ईमान के साथ मांगे, with no doubting. और कुछ शक ना करे, For he who doubts is like a wave of the sea, क्योंकि जो शक करता है वो समंदर की लहर की मानिंद होता है, driven and tossed by the wind. जो हवा से बहती और उछलती रहती है. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. वो बंदा ये ना समझे कि मुझे खुदावन की तरफ से कुछ मिलेगा. He is a double-minded man, वो दो दिला शख्स है, unstable in all his ways. और अपने किसी काम में भी वो कायम नहीं रहता. You see, we need wisdom because wisdom is practical insight to life. आप देखें कि हमें सबको हिकमत की जरूरत है, क्योंकि हिकमत ही हमारी जिंदगी को रोशन करती है. Wisdom gives us the ability to be patient in the midst of difficulties. और हिकमत ही है जो हमें सब्र पैदा करती है जब हम आजमाइशों में घिरे रहते हैं. That is why Jesus told his disciples, I am sending you as sheep among wolves. इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से कि मैं तुम्हें भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं. You must be wise as serpents and harmless as doves. तुम्हें सांप की तरह शातिर और तेज बनना है और मासूम बनना है कबूतर की मानित. That is why the wisdom that comes from above is first peaceable. इसलिए जो हिकमत खुदावंद की तरफ से आती है वो बहुत ज्यादा पीसफुल होती है, बेजरर होती है, and it's easy to be entreated. और वो आसान होती है उसको लेना और उसको समझना, and full of good fruit. और वो बेहतरीन फलों से लबरेज होती है. And one of the fruit of the Spirit is patience. और रूह के फलों में से एक फल सब्र है. In other words, the King James Version puts it this way: long suffering. इस वजह से जो किंग जेम्स वर्जन है, जो इसका उर्दू तर्जमा है, वो कहता है कि हमारी तकलीफ लंबी है. More so, it gives us the ability to control our emotions in the midst of difficult situation. जब हम मुश्किलात में घिरे होते हैं तो ये सब्र ही है जो हम में साबित कदमी पैदा करती है. That's the kind of discipline that will allow us to glorify God regardless of the threats and the trials. और फिर ये सब्र जो है जब हम आजमाइश में होते हैं, यही हमारे अंदर मजीद ईमान पैदा करता है और उस ईमान को मजबूत करता है. This is why Paul prayed for the believers in Colossae. इसी वजह से जो पौलुस रसूल है वो कलूसियों के खत में उनको तसल्ली देता है. And that prayer is written in Colossians chapter 1, verse 9 through 12. Chapter 1, verse 9 through 12. Verse 9 to 12. Yes. Go ahead. इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते
कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन आमीन। Amen. For those who do not understand Urdu, Paul's prayer for the believers in Colossians chapter 1, verse 9 through 12 says, after he heard of their faith and love in the Lord, he said, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, for all patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in light. जी मेरे अजीजों, ये इन्होंने कलूसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब की 9वीं से 14वीं आयत तक सारा पढ़ा है, और आप इसको पढ़ सकते हैं। आमीन। So we have, when we dwell in the word and the word dwell within us richly, जब हम इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया हमारे अंदर रहती है, we are motivated to exercise patience in our divine